9th standard, I told you that I'm going to put what the two uh, series, put two equations where I'm going to derive what in the science में. Number one, resistors in series and resistors what in parallel. ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको फाइंड करना पड़ेगा. ये जो बेसिस है, इन बेसिस पे वी गोइंग टू डू द सम्स भी करेंगे हम. सी नाउ व्हाट इज रेसिस्टेंस सीरीज. सी अब यहाँ पर तीन रेसिस्टेंस है, R1, R2 and R3. See now why we are putting these resistance in series. हम लोग ये रेसिस्टेंस को सीरीज में लाइन से receive. हमने ये C और D क्या है, these are the two potential point है, these are the two points. ये दो पॉइंट के बीच में हमने क्या पुट किया है, रेसिस्टर R1, रेसिस्टर्स R2 और रेसिस्टर R3, और हमने ये तीनों की तो पुट किया एक ही लाइन में पुट किया. देखो R1, R2, R3 they lies what in one line. Now why we are putting these resistors in one line? Why we are putting in one line? Because we are putting what in the series में. When we are putting this resistor in this line में, that is called what? Resistors in series. ये series में लगा हुआ है, correct? Now why are we putting this one? Because to that the current should flow what in the resistor will be what same. See R1 same current flow through each resistor. मतलब क्या? See same current flow through each resistor. जो सी इधर दो है, एक A है, इधर B है. A जो है वो दैट्स कॉल्ड एमीमीटर. एमीमीटर का मतलब होता है वी आर गोइंग टू मेजर द करंट. हम करंट मेजर करेंगे कि ये रेजिस्टेंस के सर्किट के अंदर कितना करंट इज व्हाट मूविंग, हाउ मच करंट इज व्हाट मूविंग. तो A is useful to measure what एमीमीटर है, and एमीमीटर is useful calculate to measure what current. इधर तुम्हारा V है, V means what? Potential difference between the two end points C and D. तो V काउंट करेंगे लोग R1 पे कि कितना पोटेंशियल डिफरेंस है R1 में, ये पुट करेंगे इधर कितना पोटेंशियल डिफरेंस है R2 में, और इधर पुट करोगे तो कितना पोटेंशियल डिफरेंस है वो R3 में. लेकिन सभी में R1, R2, R3 के अंदर हर एक रेजिस्टेंस में क्या होगा, सेम करंट फ्लो होगा. अगर 3 है तो 3 ऐसा होगा. सी to that means we are going to see that the current flows in each resistors will be what same current. एक ही करंट फ्लो होगा किसके अंदर, from these three resistors में. See now अब the value of current I ये on the potential difference between C and D, ये क्या है V, we are going to measure I और V हम measure करेंगे. I कैसे measure करेंगे, with the help of what, with the help of the what ammeter. और V हम कैसे फाइंड करेंगे, with the help of the what, with the voltmeter. Voltmeter helps to find the voltage what in the volt, in the what, not voltage, called what, volt in each of the three resistors. See अब यहाँ पर मैंने अरेंज किया 3 रेसिस्टर R1, R2, R3 आर कनेक्टेड इन सीरीज. हमने सीरीज में कनेक्ट किया. अब इसमें R1 में वोल्ट हो गया V1, R2 में V2 वोल्ट है, R3 में V3 वोल्ट है. सी P and the potential difference every resistor R1, R2, R3 में दिया. Then क्या मिलेगा हमको, सी so V is equal to potential difference in each resistor V1 plus V2 plus what V3. मतलब we are going to find out what is the potential difference between what all the in the these resistors. See according to Ohm's law. See now according to Ohm's law पढ़ा था हम लोग ने. Ohm's law में क्या दिया है, that V is equal to what, IR, यानी potential difference is equal to the product of the current and the what, resistance. तो V is equal to IR, correct? So अगर V IR है, so V1 क्या रहेगा, IR1, V2 क्या रहेगा, IR2, और V3 क्या मिलेगा अपने को, IR3. यानी V की वैल्यू क्या गई, IR1, इक्वेशन 1 है. V की वैल्यू क्या मिला, IR. V1 क्या मिला, IR1. V2 क्या मिला अपने को, IR2, और V3 क्या मिला अपने को, IR3 मिला. तो ये तीनों वैल्यू, ये सब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के बाद इन इक्वेशन 1, करेक्ट? कैसे करोगे, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ V इन इक्वेशन 1 में डाल दो. अब सी इधर क्या V, इधर V है, इधर V है. V की वैल्यू क्या है, IR. इन प्लेस ऑफ V क्या पुट करने का, IR.
IR. In place of V1 क्या पुट करने का IR1. In place of V2 क्या पुट करने का IR2. In place of V3 क्या पुट करने का IR3. see I ये कॉमन है, कॉमन निकाल दो, ये जो टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है तो हम लोग कॉमन निकाल लीजिए. IR1, IR2 और IR3. और इधर हम लोग को मालूम है that we know that in the series में सेम करंट फ्लो होता है, सेम करंट फ्लोइंग व्हाट इन द सीरीज में. सो ये I कट हो गया तो R is equal to R1, R2 and what R3. अगर suppose if number of resistor is connected in the series में, that is what Rn. तो इक्वेशन कैसा बनेगा RS का मतलब होता है रेसिस्टर्स इन सीरीज. R का मतलब होता है रेसिस्टर, S का मतलब होता है सीरीज इज इक्वल टू R1, R2, R3 डॉट 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 डॉट. अगर नंबर होगा तो क्या, बहुत सारा अगर रेसिस्टेंस होगा तो क्या आएगा इसका Rn. क्या आंसर गया Rn. सी ना ये हम लोग को दिस वाज द फाइनल आंसर. लेकिन टीचर लोग को दिया सेम. See now behind what they have given what the अगर suppose if the resistors are connected in series, अगर हम लोग ने resistors को कनेक्ट किया सीरीज में. नंबर 1 फर्स्ट पॉइंट क्या बोला, सी क्या बोला हम लोग को, the same current flow through each resistor. ध्यान सुनो, सी इधर हम लोग को दिया है R1, R2, R3 में सेम करंट फ्लो होगा. क्या है फर्स्ट वन, सेम करंट फ्लो through each what फर्स्ट पॉइंट क्या रहेगा, सभी रेसिस्टर में सेम करंट फ्लो होगा. फर्स्ट पॉइंट करेक्ट. सेकंड पॉइंट सी ना फिर क्या बोले हम लोग ने, द इफेक्टिव रेजिस्टेंस ऑफ द रेसिस्टर्स is equal to sum of the individual series. Effective resistors मतलब क्या RS. Effective resistors is equal to sum of the individual resistors. यानी R1, R2, R3 को कैलकुलेट करो तो मिलेगा और हम लोग को RS मिलेगा. ये सेकंड पॉइंट निकल दूंगा. क्या है तुम्हारा इफेक्टिव रेसिस्टर. इफेक्टिव रेजिस्टेंस of the resistor is equal to the sum means what, sum को प्लस करने का, sum of all the resistors what in the individual series में, यानी R1, R2, R3 इसको प्लस करो तो क्या मिलेगा हम लोग को RS मिलेगा. करेक्ट. ये था सेकंड पॉइंट. सी थर्ड पॉइंट करेक्ट. सो RS will be sum of all resistors. ये शॉर्टकट में लिखा है मैंने. करेक्ट. थर्ड वन सी, थर्ड वन क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम अरेंजमेंट C और D. सी ये क्या थर्ड पॉइंट क्या है. थर्ड पॉइंट हमने बोला है व्हाट, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स, यानी C और D दो पॉइंट हमने अरेंज किया है. द पोटेंशियल डिफरेंस विद द टू पॉइंट्स इज विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द ईच रेसिस्टर. यानी ये टोटल जो CD में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी इज इक्वल टू सम ऑफ द इंडिविजुअल पोटेंशियल डिफरेंस व्हाट इन द ईच रेसिस्टर. यानी इधर आएगा V1, V2 और तुम्हारा V3. यानी द सीधे बोले हम लोग को द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू एक्सट्रीम पॉइंट्स will be equal to sum of the individual potential difference between in the each what individual resistors. ये अपना थर्ड पॉइंट है. और फोर्थ पॉइंट सी, और इसका सी दैट इज व्हाट, दो रेजिस्टेंस सीरीज है तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस विल बी ऑलवेज ग्रेटर देन द व्हाट इंडिविजुअल रेजिस्टेंस. अभी सिंपल एग्जांपल लो, अगर मैं बोला RS, सी RS समझो आता है 8 आता है, 8 आया. सपोज ये 2 है, ये 3 है और ये कितना है 3 आ गया. करेक्ट. सी ना तो ये जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है
तो क्या ये RS will be always greater than R1, RS always greater than what R2, RS will be always greater than what R3, because RS कितना 8, 8 is greater than what 2, ये कितना 8 greater than what 3, ये कितना 8 greater than what 3, that means what, see RS हमेशा greater होगा, किससे greater होगा, individual resistance से RS will be always greater, effective resistance will be always what greater. Now fifth point जो हम लोग का ये है, why we are using this what series में लगाते हैं, because to increase the resistance in the circuit, मतलब सर्किट में resistance को increase करने के लिए, to increase the resistance in the circuit, that's why this we are using what the all the resistance what we are putting what in the series में, correct. So it is for the 5 points जो effective है इसका, which are there what in the resistance what the series, correct. Now next video we are going to put what about the parallel.